Your chapter name is the trigonometry. Ratios and identities. Trigonometry, ratio and identities. Already you know some values. Table already you know. And sine theta in any right angle triangle. Let this is the right angle triangle. If you consider this angle as theta, तो AB को क्या बोलते हैं? AB is the P, length of perpendicular, opposite side. And BC को ले जाता है base and denoted by B. And ये already you know hypotenuse. ठीक है? What is the sin theta? P upon B. Sorry, P upon H. Yes. Cos theta? B upon H. B upon H. Tan theta? P upon B. P upon B, which is sin theta upon cos theta. ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका एच एच कैंसिल होगा तो P by B. What is the cosec theta? 1 upon sin. H by P, which is 1 upon sin theta. What is sec theta? If it's H upon H B. upon B. That is 1 upon cos theta. And what is the cot theta? B upon P, which is cos theta upon Sin theta. sin theta. So, and that also 1 by tan theta. तो साइन कोसेक रेसिप्रोकल टू इच अदर, तो कभी भी आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिखेगा तो यू कैन मेक इट 1. सिमिलरली cos थीटा इंटू सेक थीटा वो भी आप 1 कर सकते हो. tan थीटा इंटू cot थीटा वो भी कैंसिल होकर 1 होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ आइडेंटिटीज आपको पता है? क्या क्या आइडेंटिटीज था? Sin square plus cos square is equal to 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो आप कभी भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस Cos square plus. cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की जगह आप यूज कर सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. लाइक दैट. सेकंड क्या था? Sec square theta minus tan square theta is sec equal to स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसमें इफ आई यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देन यू विल गेट sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec theta sec minus tan थीटा theta. माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1. इसका मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा. दैट मीन्स sec theta plus tan theta you can write 1 upon sec theta minus tan theta, or sec theta minus tan theta you can write 1 upon
sec theta plus tan theta, मतलब इसका रिवर्स हम यूज करते हैं. 1 upon sec theta minus tan theta कभी दिखा तो यू कैन डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये sec theta plus tan theta होगा. ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हो. Like one more identities, that is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. In similar way, you can write cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta is equal to 1. That implies cosec theta plus cot theta is equal to 1 upon cosec theta minus cot theta, or cosec theta minus cot theta you can write 1 upon cosec theta plus cot. इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी किए थे लास्ट टाइम. इसको नोट करना है तो कर लीजिए. Done? Yes. Okay.
apart from that ऑलरेडी आप लोग को टेबल पता होगा, है कि नहीं? uh, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, and your sin theta, cos theta, sin 0, 0. 30 डिग्री, 1/2. 45 डिग्री, 1/2. 1/√2. 60, √3/2. √3/2. 1. cos 1, √3/2. 1/√2. 1/2. 1/2. 0. tan theta, sin by cos, 0. 1 by √3, 1, 1/√3. 1 Not upon, defined. Not defined. okay, cot theta, reciprocal of tan, not defined, √3. 0, secant theta, reciprocal of cos, 1, 2 by √3, √2, 2, not defined, cosec theta, reciprocal of sin, Not defined. not defined, 2, √2, 2 by √3, okay, 0 sir. हाँ 0 आएगा ना? 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, सॉरी. ये भी आप सबको पता है, ठीक है? आप इधर चेक करोगे, आपका साइन क्या होता है, फर्स्ट दिस इज 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इंक्रीज कर रहा है, देखो ना, आपका वैल्यू ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रहा है, हाफ लेस देन 1 by √2, ये लेस देन √3/2, ये लेस देन 1, तो ये ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रहा है, whereas cos डिक्रीज कर रहा है, और दोनों का वैल्यू सेम कहाँ पे 45 तक, तो 45 तक आप देखोगे साइन का वैल्यू cos से छोटा है, साइन लेस देन cos, आफ्टर 45 साइन बड़ा हो जाता है, ओके? तो 0 to 45 डिग्री, इफ यू चेक if theta belongs to 0 to 45 डिग्री, आपका sin theta less than cos theta, whereas 45 से लेकर 90 तक उल्टा हो जाता है, sin theta more than cos theta, ठीक है? ये सब आप यूज कर सकते हो चीज, इसको किसी को नोट करना है तो कर लीजिए। डन? Yes, sir.
और कुछ डिस्कस हम किए थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। In how many ways you can measure your angles? There are in 3 different ways you can measure your angles. Angle क्या होता है पहले? What is angle? This is your x-axis और ये x dash मतलब ये positive x-axis, ये negative side of x-axis, y-axis मतलब ये नेगेटिव साइड ऑफ दिस, ये पॉजिटिव साइड। आपका कोई भी एंगल, सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये कितना एंगल कर रहा है, तो ये एंगल हमेशा मेजर किया जाता है इन दिस वे। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे देन योर एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। बट वही चीज को आप क्लॉकवाइज मेजर कर दोगे देन इट विल बी नेगेटिव एंगल। ओके, अगेन एंगल ऑलवेज मेजर्ड, हम ये जो एंगल बोलेंगे व्हाट एवर योर एंगल्स, दिस एंगल ऑलवेज यू हैव टू मेजर फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम ऐसा मेजर नहीं करेंगे, ए रेस्पेक्ट में हम मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी एंगल हम मेजर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी हिसाब से हम एंगल डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये जितना, सपोज ये आपका 60 डिग्री दे दिया, तो आप रोटेट लाइक दिस, ये एंगल आपको कितना देगा? थ्री हंड्रेड डिग्री, ओके, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन इज द 360 डिग्री। Suppose this is the line. If I rotate, let us take this angle is the 210 degree, ठीक है। तो आप ऐसे रोटेट करोगे तो आपका कितना एंगल मिलेगा? ये हाँ, इफ दिस इज द 210 डिग्री, ये आपको कितना डिग्री देगा? हम्म, 150 150 देगा, ओके। आपका टोटल जो होता है ना 360 होता है। अब 360 से 210 माइनस कर दो, 150 डिग्री होता है, ठीक है। बट ये 150 को हम माइनस 150 लिखेंगे, प्लस 150 नहीं लिखेंगे, प्लस 150 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका जो रोटेशन होता है ना ये क्लॉकवाइज। तो इफ यू रोटेट, एक ये जो रोटेशन था ये एंटी क्लॉकवाइज था। इफ यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज देन योर एंगल इज पॉजिटिव एंगल, ओके। इफ रोटेशन in anti-clockwise sense,
then angle will be positive angle. For clockwise sense, clockwise रोटेट करोगे देन आपका नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। एंगल 150 डिग्री, बट रोटेशन के हिसाब से ये 150, मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा देन मैं क्या बताऊंगा, इट इज द 150 डिग्री। बट हमें एंगल जब कंसीडर करेंगे ना, एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करेंगे, तो इसलिए यहां से हम कंसीडर नहीं करेंगे, इधर से मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मेरा कंसीडरेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होना चाहिए, इसलिए मैं ये पार्ट को ले नहीं पाऊंगा, 150 डिग्री केस ले नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आपका रोटेशन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होना चाहिए। तो इफ यू रोटेट सेम एंगल, दैट मींस 210 डिग्री सेम एज 150 डिग्री, सिर्फ आपका रोटेशन चेंज हो गया, अदरवाइज आपका एंगल, ये जो लाइन 210 डिग्री बोलो कि -150 डिग्री बोलो, दैट रिमेन सेम, दोनों सेम होता है। तो इसी हिसाब से मैं साइन 210 डिग्री सेम एज साइन ऑफ -150 डिग्री, आप tan ऑफ 210 डिग्री जितना आपको मिलेगा, tan ऑफ -150 डिग्री भी आपको उतना मिलेगा, राइट। अच्छा, in how many different ways you can measure your angles? There are 3 units. You can measure your angle. क्या क्या था? Degree, radian, grade. In 3 different ways you can measure your angle: degree, radian and grade. ये तीनों में एक रिलेशन होता है। आपका जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, दैट इज रेडियन सिस्टम। डिग्री अलग होता है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। जस्ट पाई लिख दो, पाई रेडियन समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप ये पाई रेज टू आर लिख सकते हो, नहीं तो पाई रेज टू सी लिख सकते हो। ग्रेड इज द 200 ग्रेड। बट सिर्फ 180 लिखोगे और क्या समझेगा? इफ यू राइट 180, इसका मतलब वो क्या है? डिग्री की, रेडियन की, ग्रेड क्या है? Radian. रेडियन। वन सिर्फ 180 लिखोगे, रेडियन को डिनोट करेगा। डिग्री के लिए आपको ये डॉट देना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिग्री नहीं बनेगा। 200 लिखने से वो ग्रेड नहीं बनता है, 200 के ऊपर आपको जी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 200 रेडियन के अंदर चला जाता है, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो रेडियन सिस्टम है, ठीक है। तो डिग्री एंड ग्रेड के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा, रेडियन के लिए आपको सिर्फ नंबर सिस्टम लिख दो, दैट इज रेडियन। If you denote degree as D, radian as R and grade as G, then D upon 180 is equal to R upon pi is equal to G upon 200. This is the relation. आप ये relation से डिग्री, रेडियन, ग्रेड कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपका 90 डिग्री रेडियन में कितना होगा, ग्रेड में कितना होगा?
π/2 π/2 ग्रेड में कितना होगा? हंड्रेड। यस 100 ग्रेड होगा, क्योंकि इसका 180 डिग्री क्या 90 डिग्री मतलब इसका एग्जैक्टली हाफ, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। राइट, सॉरी ये तो आप इधर आप चाहो तो आप इधर यूज कर सकते हो। डी मैंने क्या दिया, क्या हुआ निखिल? अब डी की जगह आप डाल सकते हो 90 डिग्री, डिग्री था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, रेडियन में आपका क्या मिलेगा? रेडियन, आपको रेडियन चाहिए, इक्वल टू पाई, तो आर कितना हो जाएगा? आप ये कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा। अब इसको प्लस मल्टीप्लाई कर दो तो π/2 वही मिला ना। बट ऐसा ही सब आप करोगे तो ऐसे रख सकते हो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना होगा? π/180, तो आपको 90 डिग्री कितना चाहिए? π/180 into 90, actually this is the calculation, तो you'll get π/2। अब मुझे बताइए 25 डिग्री कितने रेडियन होगा, कितने ग्रेड होगा? रेडियन में कितना होगा, ग्रेड में कितना होगा? π/6 π/6 no 5/6. 5/6, ओके। सर 5/6 आएगा। फाइव 5/6 25 डिग्री पक्का? तो फिर ग्रेड ग्रेड में कितना होगा?
ग्रेड में कितना होगा? You said 5 pi by 6. Am I right? तो कैसे हिसाब आप लगा रहे हो? आपका 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180, आपको 25 डिग्री चाहिए, कितना होगा? pi by 1 into इंटू 25। तो फिर कैसे किए? कैंसिल किए विथ, किसमें कैंसिल किए? कैंसिल विथ 5। pi by 36. हाँ, 5 पाई बाय 36। तो 6 कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? दिस इज द राइट आंसर। अब ग्रेड में बताइए कितना होगा? 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड। तो 1 डिग्री 200 अपॉन 180 ग्रेड, मुझे 25 चाहिए, तो इंटू 25 करेंगे। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये एक्चुअली 10/9 इंटू 25, that is 250 upon 9 grade. So this is your answer. तो ऐसे कन्वर्सन आप कर सकते हो। 7 पाई बाय 6 कितना डिग्री होगा? चेंज टू डिग्री एंड ग्रेड। डिग्री में कितना होगा, ग्रेड में कितना होगा बताइए? $210. यस। ग्रेड
ହେଲା? सेवेंटी अपॉन 3 70/3 ओके। आपका पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे पाई 7 पाई/6 मतलब 7/6 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7/6 इंटू 180 डिग्री, तो ये कैंसिल होता है, ये 30 डिग्री होता है। 30 इंटू 7 दैट इज 210 डिग्री, करेक्ट। अगेन पाई रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड। मुझे 7 पाई/6 रेडियन कितने ग्रेड होगा, तो 7/6 मल्टीप्लाई करो विथ 200 तो 70 कैसे हुआ? डिवाइड 2 करेंगे तो 100, ये 3, तो इट इज 700/3। इतना ग्रेड होगा। जब पाई का वैल्यू 200 ग्रेड हो रहा है तो 7 पाई/6 200 से तो बड़ा होगा ना। अब बताओ 450 ग्रेड, इसको रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करो। कितने रेडियन होगा, कितने ग्रेड होगा, सॉरी डिग्री होगा।
मिला? Sir, 9 pi by 4 radian. ओके, एंड डिग्री में क्या मिला? रेडियन से डिग्री, आप ग्रेड से रेडियन हो गया, ग्रेड से डिग्री करो, नहीं तो रेडियन को डिग्री कन्वर्ट कर दो। तो 405 डिग्री मिल रहा है। 405 ठीक है, बस करेक्ट। आपका 200 डिग्री, सॉरी 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन,
1 ग्रेड कितना होगा? पाई अपॉन 200। आपका 450 ग्रेड चाहिए तो पाई अपॉन 200 इंटू 450 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये होगा 9, ये होगा 4, दैट इज 9 पाई बाय 4। एंड डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 200 ग्रेड इक्वल टू 180 डिग्री, 1 ग्रेड 180 upon 200 degree, then 450 grade with the 180 upon 200 into 450 इतना डिग्री होगा? कैंसिल, 2 कैंसिल करेंगे तो 9, 9 into 45 405। तो ऐसे कन्वर्सन आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलरेडी यू नो ASTC पे हम डिस्कस किए थे। व्हाट इज ASTC? all sin 10 cos. This is your first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, ठीक है। A stand for all, A stand for sin, T stand for tan, C stand for cos. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका 0 से लेके 90 डिग्री तक, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90, देन इट इज कमिंग अंडर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो 0 to 90 के तक क्या होगा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, जो 6 ट्रिगो रेशियो का आउटपुट आपका ग्रेटर देन 0 का वैल्यू देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसलिए हम जितने सारी वैल्यू हम टेबल में मिला था, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू सबके सब पॉजिटिव वैल्यू था, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं था। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लेके 180 तक, थीटा बिलोंग्स टू 90 से लेके 180, then it is coming under second quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेके 270 तक, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक, it is coming under third quadrant. and 270 से लेके 360 it is fourth quadrant, ठीक है। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी साइन, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। जब साइन ग्रेटर देन 0 होगा, कोसेक भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे साइन एंड कोसेक दोनों ग्रेटर देन 0 होता है, बाकी चारों नेगेटिव हो जाता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan, T stand for tan and cot, tan and cot both greater than 0, other four negative. In fourth quadrant cos and sec both greater than 0, other four negative. तो आपका क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका वैल्यू चेंज होता जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? हम 90 ऑड पाई बाय 2 यूज करोगे। ऐसे दो फॉर्मेट मैंने बताया था, एक इवन पाई फॉर्मेट बताया था और एक ऑड पाई बाय 2 फॉर्मेट बताया था।
और एक पाई फॉर्मेट होता था, एन पाई। दो फॉर्मेट। इसमें क्या था, साइन साइन होता था, ट्रिगो रेशियो रिमेन्स सेम, मतलब साइन एन पाई प्लस और माइनस थीटा, जो भी बोलो, आपका आंसर आइदर साइन थीटा होगा, नहीं तो माइनस साइन थीटा होगा। आप कॉस इनपुट डालोगे, कॉस एन पाई प्लस और माइनस थीटा, इधर कॉस थीटा होगा, नहीं तो माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा। पहले साइन पाई माइनस थीटा करते हैं। पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा, माइनस tan थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। आपको सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना है। cot पाई माइनस थीटा कितना होगा? ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। cot माइनस 40, कोसेक क्या होगा? पॉजिटिव 40, गुड। सेक क्या होगा? नेगेटिव 40, तो ये तीनों लिखने जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर नो साइन कोसेक दिया जाएगा तो आप साइन रेसिप्रोकल करके साइन करके आप निकाल सकते हो। तो हम आगे के लिए सिर्फ तीन तीन का करेंगे, ठीक है। लाइक दैट साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? पाई प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका पाई, यहाँ पे आपको पाई मिलता है 180 डिग्री। इसके बाद बड़ा होता है थर्ड पाई प्लस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। cos पाई प्लस थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस cos थीटा। tan पाई प्लस थीटा कितना होगा? पॉजिटिव प्लस प्लस टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे sin 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका 2 पाई, ठीक है ना। वन कंप्लीट रोटेशन इज 2 पाई। पाई से कुछ कम हो गया, ठीक है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन क्या होगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। cos क्या होगा? प्लस साइन प्लस प्लस कॉस थीटा, प्लस cos। tan क्या होगा? माइनस टेन थीटा, यस। माइनस बाकी any complete rotation, every one complete rotation is the 2 pi, 360 डिग्री 2 pi। तो कितने बार भी कंप्लीट रोटेट करेगा आप उसको जीरो मान सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपको दिया गया साइन 500 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? साइन 360 प्लस 140 डिग्री, ठीक है ना। ये 360 द कंप्लीट रोटेशन, आप इसको जीरो मान सकते हो, व्हिच इज साइन 140 डिग्री। सपोज आपको tan 999 डिग्री दिया गया, तो आपको देखना पड़ेगा 999 में कितने कंप्लीट रोटेशंस आ रहा है। कितना आ रहा है? कितने बार रोटेट कर जाएगा? 2. 2 बार। तो यू कैन राइट
tan ऑफ 2 times 360 मतलब 720 हो गया प्लस 270 720 हो गया ना 279 डिग्री होगा। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू tan, ये दोनों को आप जीरो मान सकते हो। ठीक है, तो इसको कंसीडर आप जीरो कर सकते हो। जितने भी कंप्लीट रोटेशन यू कैन कंसीडर एज जीरो। तो इट इज इक्वल टू tan 279। फिर 279 देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट के हिसाब से हम उसका डिसाइड करेंगे साइन क्या होगा क्या होगा। बट जितना कंप्लीट रोटेशन आप उसको जीरो मान सकते हैं। अब बताइए साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? If I consider theta is in first quadrant, suppose इसको मैंने थीटा मान लिया, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सपोज ये आपका 30 डिग्री 60 डिग्री लेटेस्ट है, तो माइनस 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड। कैसे? फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस quadrant. 60 के लिए आपको तो रोटेशन चेंज करना पड़ेगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। आप यहाँ पे देखो 2 पाई को मैंने जीरो कंसीडर कर दूंगा ना, आपका साइन ऑफ माइनस थीटा ही आ जाता है। तो 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 को मैंने जीरो मान लिया तो आपको साइन माइनस थीटा ही दिखाई दे रहा है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इट इज माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? माइनस tan थीटा। सिमिलरली इन पाई बाय 2 फॉर्मेट आपका साइन चेंज हो जाता है कॉस, एंड कॉस चेंज हो जाता है साइन। tan चेंज होता है कॉट, कॉट चेंज हो जाएगा tan। कोसेक चेंज होता है सेक, सेक चेंज होगा कोसेक। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? नाइन्टी माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 मैं तो 90 बोल रहा हूँ। 90 से कम सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से कम वैल्यू ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा आपको क्या मिलेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। Sin theta. साइन tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। Cot theta. कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। Tan theta. लाइक कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा। sec theta, Sec theta. सेक 90 माइनस थीटा cosec थीटा। cosec theta, अच्छा, ये एक और पाई बाय 2 था। अब प्लस में करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा कौन माइनस सा क्वाड्रेंट में रहेगा? Minus cos theta. कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड सेकंड से क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट, 90 से बड़ा, जस्ट 90 से ज्यादा बड़ा है मैं थीटा को मतलब सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। Second quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट कैसे जाएगा, ये 90 से बड़ा है ना। ओके, Yes, थर्ड sir. क्वाड्रेंट जो होता है ना पाई से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इधर से कम होना चाहिए। ओके सर, Okay? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा, कॉस थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा। cos 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस, माइनस sin थीटा, Minus क्योंकि sin cos, theta. हाँ cos उधर नेगेटिव, sin का अपना input नहीं है। मुझे देखना है कि cos क्या होता है, आपका इनपुट cos क्या उधर होता है, cos नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस sin थीटा। tan 90 प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस माइनस कॉट थीटा, cot 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 3π/2। 3π/2 मतलब ये आपका π/2, 2π/2, 3π/2, ये होता है आपका 3π/2। 3π/2 कम, 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 3π/2 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब लिखेंगे साइन 3π/2 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा, माइनस माइनस व्हाट, कॉस थीटा, माइनस cos थीटा। cos 3π/2 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस sin थीटा। tan 3π/2 माइनस थीटा, प्लस कॉट थीटा, प्लस cot थीटा। क्योंकि ये सब थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव होता है, बट tan पॉजिटिव होता है। तो cot 3π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, tan, प्लस tan थीटा। अब चलेंगे 3π/2 प्लस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस cos थीटा। 3π/2 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। cos 3π/2 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस sin थीटा। tan 3π/2 प्लस थीटा माइनस साइन, माइनस कॉट थीटा, माइनस cot थीटा। cot 3π/2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस। बस ये सब आप नोट कर लो।
Done? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हम डिस्कस किए थे कंपाउंड एंगल्स. ऐसे साइन ऑफ ए प्लस बी is the sin a cos b plus cos a sin b. Sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b. सेम फॉर्मूला, प्लस के लिए प्लस आ रहा है, माइनस के लिए माइनस आ रहा है. cos of a plus b, cos a cos b minus sin a sin b. cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b. प्लस के लिए माइनस आ रहा है, माइनस के लिए प्लस आ रहा है. tan of a plus b is the tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Tan of a minus b, it is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. ये प्लस के लिए प्लस और माइनस, माइनस के लिए उल्टा साइन, माइनस प्लस. लाइक cot a plus b which is cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. when it is cot a minus b, आपका साइन इंटरचेंज हो जाएगा. cot a cot b प्लस 1, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा अपॉन cot b minus cot a. make it cot b minus cot a, not cot a minus cot b. ये फॉर्मूला डिसाइड मतलब किए थे. इसके बाद कुछ एंगल्स निकाले थे. साइन 15 डिग्री, √3 minus 1 upon 2 √2 which is cos 75 degree. cos 15 degree √3 plus 1 upon 2 √2, that turns sin 75 degree. tan 15 degree, ये दोनों का डिवीजन, you will get after simplification you will get 2 minus √3, that is cot 75 degree. cot 15, 2 plus √3, that is tan 75 degree. 15 डिग्री आपको रेडियन में लिखना है तो 5/12 होता है. 75 डिग्री रेडियन में होता है 5/12. ये रिजल्ट्स निकाल लेते हैं. और हम कहते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दैट इज 2 cos ए साइन बी. cos a plus b plus cos a minus b, that is 2 cos a cos b. cos a plus b minus cos a minus b, that is minus 2 sin a sin b. ये हुआ था
इसके बाद हम कहते साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए सॉरी इंटू साइन ए माइनस बी विच इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और cos square b minus cos square a like cos a plus b into cos a minus b that is cos square a minus sin square b और cos square b minus sin square ये सब फॉर्मूले किए थे तो ये सब आप नोट करके रखो आपको याद रखना है सब कुछ
Done. Yes, sir. तो लास्ट टाइम क्या किए थे, कंपाउंड एंगल्स कर रहे थे. फिर अपन सब मल्टीपल सब मल्टीपल्स यही कर रहे yes. थे ना. हाँ सर. तो हम sin 2 थीटा डिस्कस किए होंगे. sin 2 थीटा इधर 2 sin theta cos cos थीटा और एक था 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan 1 plus tan square. cos 2 थीटा cos कितना square था, theta cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 minus 2 sin square theta 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos square theta minus 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 minus tan square theta upon 1 plus tan. square theta. 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा. और यहाँ से हम दो सब फॉर्मूला निकाले थे. sin स्क्वायर थीटा इधर 1 minus cos 2 थीटा अपॉन 2. इधर से मिला था cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 plus cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड tan स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको 1 minus cos 2 थीटा अपॉन 1 plus cos 2 थीटा. और आप cot स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो. दैट इज 1 plus cos 2 थीटा अपॉन 1 minus cos 2 थीटा. ओके. और tan 2 थीटा क्या था, 2 tan theta upon 1 minus tan square. cot 2 थीटा कितना था, Cos theta minus 1 upon 2 cos. ये सब हुआ था. अच्छा. तो सपोज आपको tan 12 थीटा करना है तो इस फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट इन दिस वे. तो इधर क्या आ रहा है, व्हेनेवर इट इज 2 थीटा इसका ये एंगल क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है. तो मैं पूछ रहा हूँ कि tan 12 थीटा को ए रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, क्या लिखोगे. 2 tan कितना होगा 6 थीटा होगा, क्योंकि ये 2 थीटा चेंज हो जाता है थीटा मतलब उसका आधा हो जाता है, तो 12 चेंज हो जाएगा 6 अपॉन 1 minus tan स्क्वायर 6 थीटा. तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा बट एंगल आपका उसी रेस्पेक्ट में चेंज होगा. यू गॉट माय पॉइंट कि नहीं. sin 20 थीटा को क्या लिखोगे, ये रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे sin 20 थीटा को. व्हेन इट इज 2 थीटा ये थीटा बन जाता है. तो मैं जब 2 थीटा को 20 बना दूंगा तो आपको क्या बनेगा, 2 sin 10 theta. यस 2 sin tan theta cos 2 into sin 10 10 थीटा into cos. cos 10 theta. tan theta. गुड. अच्छा.
cos 8 थीटा को क्या लिखोगे? सपोज ए रेस्पेक्ट में मुझे चाहिए, cos 8 थीटा को क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ tan में? आपका cos 2 थीटा इज द 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 8 थीटा को इसी रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे? 1 minus tan square theta. 1 minus tan square 4 theta. यस 4 थीटा अपॉन 1 plus tan square 4 tan theta. स्क्वायर। ठीक है, सपोज मुझे cos थीटा चाहिए, क्या लिखोगे वही रेस्पेक्ट में? cos थीटा का कितना होगा? 1 minus tan square theta theta by 2. tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर Theta by 2. थीटा बाय। cos 7 थीटा को क्या लिखोगे? कोई रेस्पेक्ट में? One minus tan square has 3. 7 थीटा बाय 2 हाँ। वही एंगल का हाफ कर दो अपॉन 3.5 लिखना जरूर नहीं, वही जो एंगल उसका हाफ कर दो, tan स्क्वायर 7 theta by 2. तो इस रेस्पेक्ट में आप tan स्क्वायर थीटा बाय 8 को क्या लिखोगे ए रेस्पेक्ट में? 1 minus cos 2 theta 2 theta by 16. Theta by यहाँ पे थीटा जब होता है ये 2 थीटा हो जाता है, this. तो इसका डबल हो जाता है, तो ए एंगल का डबल होगा। 2 theta by 16. इसका डबल होगा। थीटा बाय 16 अरे cos थीटा थीटा बाय 8 का डबल होगा। कितना हुआ? थीटा बाय 8 का डबल मतलब इंटू 2 होगा, तो कितना मिलेगा? थीटा बाय 4। थीटा बाय 4। 16 कैसे आ जाता है? 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हो। थीटा बाय 4, थीटा बाय 16 इसका हाफ होता है, डबल नहीं होता है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बाय 4। तो ये सबको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल्स, एंगल का मल्टीप्लाई किए, इसमें हम सब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये सब मल्टीप्लिकेशन। राइट? समझाइए। हाँ सर। बस इसको जिसने नहीं लिखा नोट नोट
Done. Find these questions.
डन। हो गया। आंसर बताओगे? फर्स्ट वन किसी को मिला? नहीं। जब साइन थीटा 3/5 होता है, आपका कॉस थीटा कितना होगा? 4/5. 4/5। tan थीटा? 3/4. So here you did mistake. ये करेक्ट। कॉस आपका 4/5 मिलेगा, 3/4 मिलेगा, बट यू आर नॉट चेकिंग दिस थिंग। थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? Minus. नेगेटिव होता है, तो 4/5 कैसे होगा? तो क्या होना चाहिए? -4/5. -4/5। और इसके लिए आप सिंपल ट्रायंगल यूज करो। आप साइन स्क्वायर थीटा इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा मत करो, ठीक है? आपका ये थीटा दिया गया, साइन हो गया 3/5, तो बेस आपका 4 होगा। तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। कॉस हो जाएगा 4/5, साइन हो tan होगा 3/4, कॉट होगा 4/3। बट आपको at same time you have to consider your quadrant also, because of second quadrant cos आपका नेगेटिव होगा, tan भी नेगेटिव होगा। तो sec थीटा क्या हो गया? -5/4। cot थीटा क्या हो गया? -4/3। cosec थीटा क्या होगा? 5/4. cosec थीटा 5/3. 5/3। ठीक है, सब कुछ आपके पास है। अब जो कुछ निकालना है निकाल। क्वेश्चन 1 था कि 2 tan थीटा -4 cot थीटा +3 cos थीटा -4 sec थीटा। डाल दो सब वैल्यू। tan थीटा की जगह -3/4 -4 इंटू -4/3, 3 इंटू -4/5, -4 इंटू 5/4।
सॉरी -5/4 राइट। तो ये हो जाएगा -3/2, ये होगा +16/3, ये होगा -20/5, ये आपका 4 का +5। तो एलसीएम 2, 3, 5, एलसीएम 30। तो ये 15 मल्टीप्लाई होगा तो -45 होगा। 12/5 आएगा ना? 12 12/5 आएगा ना? अच्छा सॉरी, राइट। तो एलसीएम 30 हो गया, इसमें 15 मल्टीप्लाई होगा -45, इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा दैट इज 160, इसमें 6 मल्टीप्लाई होगा -72, इसमें 30 मल्टीप्लाई होगा। राइट। तो ये हो गया 310 माइनस कितना 72, 45, 117। तो 310, 117 कितना है 193। तो इट इज 193/30। किसी को मिला था? Yes, sir. सेकंड बताइए क्या मिलेगा। थ्री sin थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा, 3 sin 2 थीटा। ओके, 3 sin 2 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। sin 2 थीटा कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा। 4 cos 2 थीटा कितना होता है cos square theta minus sin square। वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हो क्योंकि आपका क्वेश्चन साइन में था। ओके, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो 3 × 2 दैट इज 6 हो गया। sin थीटा आपका -3/5 -4/5 1 - 2 9/, राइट। तो ये हो गया 12 × 72 -72/25। आपका ये 25 - 18 7, तो -28/25। ओके, Yes। 100 - 4 इज द आंसर। ये हो गया -100/25 -4 इज द आंसर। Yes, sir। थर्ड क्वेश्चन 2 tan square थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा क्या था 2 sec square थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा। सर 2 tan square थीटा है। नहीं 2 tan 2 थीटा, ओके सर। 2 tan square थीटा ऑलरेडी इसमें था। ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो क्या होगा 1। 2 टेक कॉमन देन tan square थीटा माइनस sec square थीटा -3 cos 2 थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम इधर निकाल चुके हैं। कहाँ पे इधर cos 2 थीटा ये था कितना हुआ था 1 - 18/25 मतलब 7/25 प्लस 2 tan 2 थीटा। tan 2 थीटा you can write 2 tan theta upon
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? 1 टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। 1 सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा कितना होगा? -1 -1 होगा। तो ये हो गया -2 माइनस 21/25 प्लस 4 टेन थीटा आपका था -3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। तो ये हो जाएगा -2 माइनस 21/25। चाहो तो ये आप कैंसिल कर दो, ये हो गया -3 इंटू ये 16 माइनस 9 7/16, 16 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 16/7। तो कितना हुआ? -2 माइनस 21/5 माइनस 48/7। एलसीएम कितना होगा? 175। इसमें 175 मल्टीप्लाई होगा, माइनस टोटल सब में माइनस है, माइनस कॉमन ले लो। तो 175 इंटू 2 350, ये 7 मल्टीप्लाई होगा 21 इंटू 7 147। इसमें 25 मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 1200। ओके, तो 1550 147 1697 बराबर। समझा ये? yes sir Yes, sir. Can I stop now? Yes, sir.